Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Diristi Judiciary. Let's begin with today's episode. Which section of the Limitation Act 1963 deals with condonation of delay? Section 4, Section 5, Section 6, Section 7. परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा विलंब की क्षमा से संबंधित है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7. The correct answer for this question is option B, section 5. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 5. Section 5 of the Limitation Act 1963 deals with the condonation of delay. The court has the discretion to accept an appeal or application even after the expiration of the limitation period, based on the justification provided for the delay by the applicant. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 विलंब की क्षमा से संबंधित है. आवेदक द्वारा विलंब के लिए दिए गए औचित्य के आधार पर न्यायालय को सीमा अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील या आवेदन स्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Constitution of India incorporates the right to remain silent? Article 20, Article 21, Article 22, Article 23. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुप रहने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 20. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20. The right to remain silent is incorporated under Article 20 of the Constitution of India. The right to remain silent is a fundamental legal principle that protects individuals from being compelled to incriminate themselves. चुप रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में शामिल है. चुप रहने का अधिकार एक मौलिक कानूनी सिद्धांत है जो व्यक्तियों को स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बाध्य होने से बचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section deals with the provision for bail under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023? सेक्शन 475, सेक्शन 476, सेक्शन 477 और सेक्शन 478. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कौन सी धारा जमानत के प्रावधान से संबंधित है? धारा 475, धारा 476, धारा 477 और धारा 478. The correct answer for this question is option D, section 478. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 478. Recently, in the case of Prem Prakash versus Union of India, through the Directorate of Enforcement, the Supreme Court held that bail is the rule and jail is the exception, even in the Prevention of Money Laundering Act 2002. Section 478 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 deals with the provision for bail. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यहां तक कि धन शोधक निवारण अधिनियम 2002 में भी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 478 जमानत के प्रावधान से संबंधित है. Next question. Which article of the Constitution of India deals with protection against illegal arrest and detention? Article 22, Article 23, Article 24 और Article 25. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवैध गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25. The correct answer of this question is option A, Article 22. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22. Recently, in the case of Abhijit Padale versus the state of Maharashtra, the Bombay High Court ruled that the arrest of a journalist was illegal, stating that a person cannot be arrested based solely on allegations of having committed an offence. Article 22 of the Constitution of India deals with protection against illegal arrest and detention. हाल ही में अभिजीत पडाले बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को केवल अपराध करने के आरोप के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 अवैध गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू presumption of fact, presumption of facts and law, rebutable presumption of law, irrebutable presumption of law। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 डैश पर लागू होती है। तथ्य की धारणा, तथ्यों और कानून की धारणा, कानून की खंडनीय धारणा, कानून की अनुत्तरदायी धारणा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानून की खंडनीय धारणा। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 applies to the rebutable presumption of law. In the context of section 14 of the Hindu Marriage Act, the presumption can be rebutted under specific exceptional circumstances, allowing the court to permit a divorce petition within the first year of marriage. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 कानून की खंडनीय धारणा पर लागू होती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 के संदर्भ में विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों में इस धारणा का खंडन किया जा सकता है, जिससे अदालत को विवाह के पहले वर्ष के भीतर तलाक याचिका की अनुमति मिल जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। द कस्टडी ऑफ अ माइनर वाइफ शैल बी विद हर डैश हस्बैंड, फादर, मदर, फादर इन लॉ। नाबालिग पत्नी की कस्टडी उसके डैश के पास होगी, पति, पिता, माँ, ससुर। सेंड अस द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।